हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट शार्दुल भट्ट। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक गेस्ट आने वाली जिनका नाम है मिस कनिका शर्मा। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट शी इज कमिंग टुडे इन आवर लाइव टॉक शो। एंड गाइस, बहुत टाइम बाद में आया हूँ तो आज देखते हैं क्या क्या होने वाला है। लेट्स अ इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ दिस टॉक शो begins in a new season, and soon we have launched so many things. So we start this session with the amazing guest. Let's wait, and then we start a session. शर्मा जी, hi Tanvidi, thank you so much for coming today. So let's wait for the Kanika Sharma. Kanika ji, please coming, then we start a session. Hi, thank you so much. Hi, Shravan. Hi Kanika ji. Kanika ji, you have rotated, I think, please. Is it fine now? Yes, this is okay. I'm audible? Yeah. Okay, thank you so much for coming today. I'm so happy about that. Thank you. It's my pleasure. So start करते हैं कनिका जी इस लाइव टॉक शो की पहली जर्नी. This IGTV is powered by Heroes Innotum. Our media partner is IU24 News Portal and our Rest City Newspaper. Our official PR media partner is our Media Hypes, and our designer partner is Anil Singh. So this talk show is appreciated to all and bring a smile on every faces. This is our whole motive, and we start with the journey. कि देखते हैं आज हम आपको हंसा पाते हैं या नहीं हंसा पाते हैं. सो स्टार्ट कनिका, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आप बाय प्रोफेशन एचआर हैं, इसके अलावा यू आर आल्सो ऑथर. सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू द स्टार्ट योर जर्नी, प्लीज बताइए. Start my journey in the sense I didn't get you. Okay, like the author journey or like the journey of me working in HR. Your author journey, how to start this journey, in which Okay. year, and I started it last year in the lockdown because I like it was lockdown. I had lost my job and I wanted to do something creative for a while that I wanted to do for so long. So I hence took up writing. ओके. तो मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से आने वाला कि देयर आर सो मेनी अप एंड डाउन्स आर कमिंग, क्योंकि बीइंग अ पैशन लॉकडाउन था, तो जैसे आपने बताया लॉकडाउन में आपने स्टार्ट किया, तो लॉकडाउन में क्या होता है कि लोगों को अपना इंटरेस्ट ढूंढने का मौका तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ प्रॉब्लम्स भी आई कि उनको इंटरेस्ट ढूंढने में भी टाइम लगा अपना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे पास होती हैं, उनमें से बहुत कम चीजें लोग ढूंढ पाते हैं. तो वो कैसा रहा, बताइए. देखिए ये तो इज समथिंग दैट यू हैव टू नो योरसेल्फ. मतलब कई लोगों के लिए आई बिलीव इट इज लाइक व्हाट यू सेड दैट दे डोंट नो बिकॉज दे नेवर गॉट अ टाइम टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स कि हमें क्या करना पसंद है. बट फॉर मी आई न्यू that writing is something, reading and writing I love. I wanted to always write a book or something, and a lockdown like a blessing in disguise or a silver lining, you can say. Backy, I think I know those kind of people, those who always wanted to do a certain thing and lockdown gave them the time. Those who also very beautifully explored in this lockdown, period that what they want to do. मेरा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, आप प्लीज अपनी बुक्स के बारे में बताइए. आप द So मेन थिंग. I've written two books. First, the horror novella that I released last year. It was my first solo. It's called Bikram and Vittal. I don't know, like you guys can see it properly. This is the horror novella, short, very short novella. And then this year I'm back with my latest book, which is Memoir. It's a collection of musings, short poems, stories, etc. So it's also doing great in the poetry section. It was like recently also a bestseller in various categories in India and
few है. So yeah, इसके अलावा I have written a couple of short stories, a couple of poems and submitted to different platforms. That is also हम्म. there. हम्म. ओके ग्रेट. तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है इसी से रिगार्डिंग कि जैसे आपने बुक लिखी तो हाउ यू एक्सपीरियंस, रीडर्स को कैसा एक्सपीरियंस हुआ, एंड क्या होता है कि आजकल लोग बुक पब्लिश कराते तो हैं लेकिन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, पेसिंग वो करते हैं, कौन सी पब्लिश करेंगे, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज, देयर सेल्फ पब्लिशिंग, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग एंड पैकेज पब्लिशिंग. तो कौन सा आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, प्लीज बताइए. देखिए, इट इज टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर एंड गोल. आपका क्या एंड गोल है? डू यू जस्ट वांट टू राइट टू सेटिस्फाई योर क्रिएटिव कीड़ा कि मुझे लिखना था हमेशा से एंड मेरे को बस पब्लिश करना है. आई मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. आई वांट टू कीप इट इन माय होम एंड शो इट टू माय फैमिली फ्रेंड्स. So you can go for online publishing and जो cost effective ways होते हैं. If your aim is you are serious, you think have a good idea and this thing plot, you can go for self publishing, spend some amount in publicizing and marketing etc. Because in today's time, as times are changing, we would have to also change as per the time. It is no longer the older days wherein people would just go by the content and not book. In today's time, unfortunately, people do judge a book by its cover. They do. And so, राइट. so you have to like work as per that. तो अगर आपका होता है, आपको लगता है आपने कुछ अच्छा लिखा है, तो spend some money, सेल्फ पब्लिश ओके. कराओ, सी हाउ रिस्पॉन्स इट इज गेटिंग. एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एंड आपने 2-3 बार सेल्फ पब्लिश करा चुके हो, so eventually yes, every author should go and try for traditional publishing house also, because they give you the reach. So but ऐसा नहीं है कि सेल्फ पब्लिशिंग हिट नहीं हुई है क्या. बहुत सारे मैं फेमस अगर ऑथर्स के बाद बोलूं तो देवर इनिश बिफोर दे वर टेकन अप बाय बिग ब्रांड्स, दे वर सेल्फ पब्लिश. ट्वाइलाइट वाज सेल्फ पब्लिश, हैरी पॉटर वाज सेल्फ पब्लिश, so those were not, they were later on taken by big names, reprint and all. So that is not a problem. That you have to, every individual has to figure for himself or herself. ओके ग्रेट. मेरा फिफ्थ क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग होने वाला है. आपकी बुक्स लिखी है आपने तो कैसा लगा आपको, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स आर कि एक छोटी छोटी कहानियां होती हैं, तो उस अगर कोई ऐसी कहानी आपको जो याद हो, जो आप अपनी बुक टाइम के टाइम लिख रही हो और आपको याद हो कि आपको बुक में कैसे करना है, या अभी जो रिव्यूज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला कि देर आर सर्टन टॉपिक दैट माई बुक्स टच. तो काफी मतलब मैंने इम्पोर्टेंट जो टेबूड सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश की है. मेरी फर्स्ट बुक में मैंने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो इंडिया में होते हैं या फिर चाइल्ड अब्यूज होता है, तो मैंने वैसे टॉपिक्स को टच किया. तो नेक्स्ट बुक में मैंने मेंटल हेल्थ, फेमिनिज्म और क्या कहते हैं और भी LGBTQ टॉपिक मैंने मतलब टच करने की कोशिश करी है. सो या तो रिस्पॉन्स उन पर्टिकुलर चैप्टर्स जो थोड़ा ऑफ बीट है उनके बारे में काफी अच्छे हैं. मतलब 2-3 वो है. जैसे अभी मैंने रिसेंटली आई थिंक डॉटर्स डे पे मैंने एक पोस्ट डाला था दैट अ लेटर टू माय फ्यूचर डॉटर इज समथिंग जो कि मेरे को बहुत बहुत अच्छा, मतलब एवरी क्रिटिक हैज टॉक्ड पॉजिटिव अबाउट इट. एवरी 1 out of every 2 reviews on Amazon talk about that chapter. Similarly, मेरा एक अभी मैंने कल मेरे को शेयर हुआ था कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के दिन पे मुझे काफी लोगों से आया कॉल कि 2-3 पोम्स और स्टोरीज हैं इस पर्टिकुलर बुक में दैट डील्स विद द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. तो उसको भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तो या रिस्पॉन्सेज आर गोइंग गुड. ओके ग्रेट, अमेजिंग. थैंक यू सो मच पीयूष सर टू कमिंग विद अस. आप जानते होंगे पीयूष सर को, बेसिकली ही इज अ मिरर मैन ऑफ इंडिया. जी, उन्होंने पहली बुक मिरर राइटिंग में लिखी थी और उन्होंने 15 बुक्स अलग अलग राइटिंग्स में लिखी हैं. एक्चुअली वी आर हैप्पी अबाउट दैट कि वो हमारे साथ हैं और वो आए हैं तो बहुत अच्छा लगा है. इसके अलावा वी स्टार्ट विद दिस कि यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा 6th क्वेश्चन इसी से यूथ रिगार्डिंग होने वाला है. मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी. इनफैक्ट यूथ को क्या मतलब आई डोंट रियली फील, मैं सबको एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि ये वो टाइम है व्हेन वी आर सीइंग दैट
you know, everything is changing in a span of time. COVID is something हमने आप सबने अपने near and dear ones को किसी ना किसी को हम जानते हैं जिसको यूज किया है या क्या. तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें definitely we should focus on materialistic things rather than things that gives us happiness, doing something, following your passion that you always wanted to do. Maybe it's cooking, maybe it's learning something, maybe it's learning guitar, dancing. So do that. Life is very short for grudges and everything. Okay. Yeah. Seventh question, and for the last, अगर इसके अलावा we have also talked with other topics. क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन में ये है आपके लिए कि बीइंग आपका जो करियर रहा एज अ ऑथर और एज अ एचआर आपका करियर कैसा रहा, प्लीज उसके बारे में बताइए प्लीज आप कुछ. ऐसा एचआर भी आई हैड अ फुलफिलिंग गुड करियर, ऐसा कुछ है नहीं. बट उसमें भी मेरा रोल जो था वो बहुत क्रिएटिव था. मतलब कोइंसिडेंटली और टचवुड आई वुड से मेरा मतलब ऐसा रहा है बाय डिफॉल्ट समहाउ कि मेरे को हमेशा जो मैंने किया है उसमें काफी क्रिएटिव चीजें मिली है. जब मैं एचआर में भी थी तो मेरा जो कोर मंडेन एचआर जॉब इतना नहीं था. इट वाज मोर टू सो विद डिजाइनिंग ट्रेनिंग्स फॉर एम्प्लॉयज, एनालाइजिंग कि उनका क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमाइज ट्रेनिंग क्रिएट करना. तो या उसको भी काफी एंजॉय किया. अभी ये फेज है तो इसको भी एंजॉय कर रही हूँ. ओके ग्रेट. कनिका जी, तो बताना चाहूंगा मैं आपको कि वी हैव डू विद सो मेनी थिंग्स. लास्ट एक टॉपिक छोटा सा मैं आपको देने वाला हूँ कि लाइक जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल बहुत सारे लोग राइटिंग करते हैं एंड डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं. आई एम ऑडिबल? या कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू वर सेइंग? ये आई एम रिपीटिंग. मैंने बोला आपसे कि ये चीज क्वेश्चंस मेरे एंड होते हैं. इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन बस इन्हीं सब चीजों से होगा कि आपको हम ऑल द बेस्ट देना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि आप जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड आपने अपने इंटरेस्ट को उस टाइम पहचाना जिस टाइम एक लॉकडाउन पीरियड था जब हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ अच्छी चीज आपने ये चीज करी. आप कौन सी सिटी से, पहले तो मैं ये पूछ चाहूंगा आपसे. मैं दिल्ली से हूँ. अच्छा, आप दिल्ली से हैं. तो दिल्ली में ऐसी कौन सी एक चीज आपको याद होगी जो एक ऐसी मेमोरी आपकी जो आपको आज तक याद होगा, अगर आप वो शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी या कुछ आपको याद हो अपने बारे में, तो प्लीज बताइए. तो आई थिंक दिल्ली के बारे में मेमोरी तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑफ माय इयर्स रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रही है. आई एम अ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट बोथ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज एंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय एलुमनाई. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम. आई थिंक जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी लर्नेडनेस, जो when I talk, when I interact with people, जो भी जहाँ से भी आया है, I am very very grateful to them for that. So that's there. And इसके अलावा obviously college days, and these are the best days of your life. You are stress free and tension free and everything. So वो जब भी मुझे I'm sad, depressed, so I remember those days and it just give me courage, new courage and every time a new zeal to fight. राइट. एक्चुअली में ये चीज है क्योंकि आजकल रीजन जैसे आपने बताया ना मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कॉल आई थी, तो रीजन ये होता है मेंटल हेल्थ से आजकल बहुत सारे लोग एक्चुअली द यंगस्टर्स द एज ऑफ आई थिंक 13 to 20 दे आर सफरिंग अ लॉट. और उन्हें रीजन क्या पता क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्हें उनका इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता है. तो इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता ना, तो वो लोग खुद को कहते हैं. जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोगों की दिक्कत ये होती है कि जब अगर लोगों को कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं. और मेंटल हेल्थ एक्चुअली कैसी है वो हमें खुद से जानना चाहिए, या जो हमारी काउंसलिंग करते हैं उनके पास जाना चाहिए. लेकिन लोग कहीं ना कहीं गलती क्या करते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां पर मिस्टेक हो जाती है. फिर उनको लोगों को लगता है तबियत खराब होती जा रही है और वो आपका दिमाग प्रेशर लेता रहता है और आखिरी में लाकर वो आपको डिप्रेशन में झोंक देता है फाइनली. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है. मैंने एक बहुत थोड़ा टाइम पहले एक टॉक शो लिया था. आई थिंक इट वाज विद माय एलुमनाई हिंदू कॉलेज ओनली, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे. एंड मैंने वहाँ पे एक चीज बोली थी जो आई फर्मली बिलीव इन दैट. मतलब वी सी सो मेनी वेस्टर्न शोज ऑन नेटफ्लिक्स या फिर ऑन इंग्लिश चैनल्स एक्सेट्रा. हमने काफी बार उन शोज में, मूवीज में देखा है that they have every school has a career counselor, every school has a therapist that they can go talk, discuss. But ये चीज अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है. मैंने यूं से कि उन्हें पता नहीं होता उनके इंटरेस्ट क्या है या क्या, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिला. अगर हम वेस्टर्न शोज देखते हैं तो हमने कभी ना कभी ये सीन हर एक किसी सीरियल या उसमें देखा होगा वो आपको बुलाते हैं करियर काउंसलिंग के लिए. गिव यू दैट दीज आर योर ग्रेड्स, देयर इज
in this particular department or sports you are lacking, these are the grades you need for A plus category. These are the grades जो आपको अभी जो grades आपके हैं उसमें आपको कौन से colleges मिलेंगे, they guide you with everything. Actually, So we don't have that kind of facility unfortunately here. So students को confuse होंगे ही ना, who would guide बिल्कुल them? बिल्कुल नहीं. If we have not blame anyone, हम किसी को blame नहीं कर सकते या किसी को हम education system को नहीं बोल सकते. हाँ, हम ये कह सकते हैं कि after the COVID, the scenario has changed now. The education policies all revised in a काफी सालों, मतलब एक इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की रिवाइज हो रही है. तो काफी सारी चीज नई चीजें आने वाली है और अब जो लोग जो भी चीज करेंगे वो कहीं ना कहीं ये नहीं रहेगा आप लोगों के लिए कि हम बेकार में कर रहे हैं. लोगों का एक जो थिंकिंग रहती थी ना कि हम ये चीज कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं. प्रेजेंट टाइम में ये सिनेरियो आ जाए आने वाला है और 2022, 3 और 4 तक आप देख लेंगे कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम एक महीने की कोई क्लासेस भी कर रहे हैं ना, तो दे हैव वैल्यूड इन अवर माइंड. हम अगर स्कूल करें, कॉलेजेस करें, वहां पर भी सिनेरियो पूरा चेंज होने वाला है. तो देयर आर समथिंग गुड फॉर अस आफ्टर द कोविड. एंड हमने देखा थर्ड वेव भी बहुत कम हो चुकी है. तो होपफुली कि नेक्स्ट ईयर से हर चीज ऑन हो रही है और हर चीज एक नई पहल लेकर आ रही है. तो आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. That's great. Very well said. जी, तो कनिका जी, आई थिंक वी हैव एंड अप दिस सेशन. इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि जो टॉक शो हमारा चलता आ रहा है, हम जनरली 20 से 25 मिनट्स तक ही बात करते हैं. सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन हमारे होते हैं और ये टॉक शो हमारा नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही तरीके से चल रहा है. 1.5 साल हो गए इस जर्नी को शुरू हुए. मुझे याद है सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव के साथ कि यहाँ पर हर एक बंदा, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अगर एक मदर या एक हाउसवाइफ भी है ना, तो उसकी कोई ना कोई जर्नी रही होगी. तो जर्नी अगर यहाँ शेयर करेगी और अगर उस जर्नी की वजह से अगर उनको हम एक छोटी सी स्माइल दे पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी. और जो आपको मैंने बताया पूरा सिनेरियो हीरोज इग्नोटम, दिस कंसेप्ट इज फाउंड बाय अस. जो एक हीरोज इग्नोटम टीम, हमारी एक बुक आ रही है जिसमें हमने 50 पर्सनालिटीज को इंडिया की अलग अलग फील्ड से हम लोगों को लेकर आए. तो एक ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इतने बड़े सिनेरियो में इतनी बड़ी, मतलब मोस्टली हमने 10 प्लस स्टेट्स कवर की हैं इसके अंदर और अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग आ रहे हैं जिनके बारे में लोगों को जनरली नहीं पता होता है. मतलब अगर आप बात करें कि एक फील्ड का कोई डांसर है और एक अगर एक कोई सिंगर है, तो वो रहते तो बॉलीवुड में या कोई भी फील्ड ऐसे. और ये कंसेप्ट ये अनसंग हीरो से कंसेप्ट है. मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो इंडिया में एक टाइम में नाम था और आज जो काम कर रहे हैं, बट सोसाइटी के लिए, जैसे सोशल वर्कर्स की बात करें, उनके बारे में कोई नहीं जानता है. तो दिस बुक इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ अस. एंड यहाँ हमने एक नई पहल करी है, एक नई सोच के साथ आ रहे हैं. दिस इज नॉट अ कम्युनिटी, दिस इज नॉट अ एनजीओ. हम एक सोच के साथ आ रहे हैं जिसमें हमने काम करा करीब 1.5 सालों से. वी आर लॉन्चिंग आवर सॉन्ग और आवर बुक, आवर जिंगल. देयर आर सो मेनी थिंग्स सर इन दिस ईयर ऑफ द लास्ट मंथ. Great, great. That's something like very unique, that, very unique that I must say. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for coming us. If you have any thing, thank you so much. जी. Okay, Kanika ji, take care. Thank you, Shadul. Okay, bye bye. Take care. Bye. All the best with your journey. Thank you so much. ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और वहां पर कोई एक और नया गेस्ट आएगा हमारे साथ. तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस. प्लीज फॉलो करिए हीरोज इग्नोटम को, फॉलो मुझे करिए. हम हर साइड से अवेलेबल हैं और प्लीज फॉलो ऑन सोशल मीडियाज. एंड इफ यू हैव पब्लिश अवर आर्टिकल्स, प्लीज गिव अस अ मेल. वी हैव अ PR पोर्टल्स, तो वी कैन अरेंज आर्टिकल्स. और आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप heroesignotum@gmail.com पे जाकर हमसे सवाल कर सकते हैं. हम आपको सारे जवाब देंगे एंड आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेक केयर. बाय बाय.